So guys, till now I have cleared 6 rounds of interview of different airlines and 1 cabin crew interview of Go Air. Till now I have 40 plus selection with the span of 4 months. So guys, अगर आप भी बनना चाहते हैं एयरलाइन इंडस्ट्री का हिस्सा, so ज्वाइन कीजिए मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन करने से पहले 2 प्लेलिस्ट जरूर देखिए, एक है इंटरव्यू कंटेंट और दूसरा सेलेक्टेड सब्सक्राइबर। हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे नए यूट्यूब चैनल एविएशन लाइफ में। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब बटन दबाइए और देखिए वीडियो इंटरव्यू एक्सपीरियंस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग तुषार। तुषार, द थिंग्स आर ऑडिबल और नॉट? इज द थिंग्स क्लियर और नॉट? आवाज आ रही है तेको? यस सर, आ रही है सर। तो गाइज, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। My name is Ashish Kumar Sahu and I run a YouTube channel named Aviation Life. I myself have cleared 6 rounds of interview and I coach people to clear airlines interview as a ground staff. So meet Tushar. Tushar is a crash course student. He joined crash course at 1 July, I guess. Right? Correct me if I'm wrong. 15, I guess 1 July को 15 में 1 जुलाई को तो अभिजीत ने ज्वाइन किया था. So Tushar joined the crash course at 15th May and he has done BBA aviation. I guess you have done BBA aviation and yes, he joined the crash course on 15th May to at the day month end 1 June, right? And he learned a lot of things and I coach people and finally Aviation Life congratulates Tushar for clearing the interview of Indigo Airlines Pune base as a officer security. And let me tell you guys one more thing that Tushar is going to work at Pune base and I was already working at Pune base earlier. So but I doesn't have any kind of settlement, ऐसा कुछ भी नहीं है. I just coached him in my best way and he just performed in his best way, right? So continue to Tushar. And before this video we will be dealing a lot of things. We'll be discussing a lot of things. The first thing which we will discuss is that I will request Tushar to give introduction of himself. So Tushar, kindly give your introduction, that who you are, what you do, and something about what you want to say. Kindly give an introduction, Tushar. So hello everyone, my name is Tushar and I am basically from Pune itself. Recently I have completed my graduation in BBA in aviation management in Pune itself, and while I was in my final semester I approached you sir, Ashish sir, for interview preparation. Before that I was not aware about how the interview preparation is been done of airline and all that kind of stuff. तो मैंने आपको अप्रोच की सर, मैंने आपको वीडियोस देखे थे यूट्यूब पे और काफ़ी वायरल हो गया था आपके 1-2 वीडियोस, तो मुझे नोटिफिकेशन आया क्योंकि मैं बहुत सारे चैनल्स को फॉलो कर रहा था उस समय पे, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी जो पुणे में है जो इंस्पायर्ड हुए मतलब आपसे, और उन्होंने मुझे 1-2 बार सजेस्ट किया था कि आपके वीडियोस देखो करके। तो मैं आपको बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ, जब से मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तब से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। मैं फाइनल सेमेस्टर में था तो उसके बाद मैं वेट कर रहा था मेरा फाइनल सेमेस्टर खत्म होने के लिए। जैसे ही मेरा फाइनल एग्जाम स्टार्ट हुआ फाइनल सेमेस्टर का, तो मैंने आपसे कांटेक्ट किया and then I told you that sir I wanted to be into this airline and I need a good approach to just how to crack the interview, क्योंकि उसके पहले मैंने जैसे जयपुर के लिए वैकेंसी आई थी, एक बार पुणे के लिए भी आई थी, तो मैंने अप्लाई किया था बट मेरा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होता उस टाइम पे। तो वो एक चीज थी कि सेल्फ ये भी था कि मेरा रिज्यूमे शॉर्टली आपने बोला था कि आप रिज्यूमे बना के दोगे, और जो ऐसा रिज्यूमे बना के दोगे जो एक बारी में शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। तो फिर मैंने वही देख के वही अप्रोच के साथ मैं आया आपके पास, और मैंने आपसे पूरा मतलब जो भी आपने मुझे पढ़ाया जो सिखाया वो 101% मुझे यूजफुल हुआ जब मैं इंटरव्यू के लिए गया। तो आपने मेरा रिज्यूमे बना के दिया, फिर आपने जो जो मुझे कहा वो मैंने प्रॉपर वे में मैंने फॉलो किया, उसके बाद फिर हो गया सर। तो शॉर्ट एंड स्वीट मेरा एज ऑफ नाउ तो इंटरव्यू मतलब इंट्रोडक्शन ऐसा ही है सर। Okay, Tushar, amazing, amazing. So Tushar, you cracked the interview for Pune base, right? So Tushar, yes, I want to suggest you कि आप अपनी स्टोरी बताइए, right? कि how you cracked it, right? कि देखना पुणे में हुआ क्या था कि CV ड्रॉप करने का सीन हुआ था कि CV ड्रॉप करनी है. So I will suggest you that please just tell in a very story की तरह बताओ भाई कि कैसे कैसे हुआ, then what interview said, then what you told to them. Well, I will suggest कि don't tell the ऐसा कुछ मत बता देना जिससे क्रैश कोर्स हैम्पर हो. हाँ, हालांकि बता भी देगा तो एडिट कर देंगे उसे, ठीक है? तो तो तुषार बताओ, ज्यादा लोग हैं नहीं इसमें,
65 लोग हैं तो उनको पता भी नहीं उतना कुछ। ओके तुषार, बताओ, है ना, बताओ कि फर्स्ट डे सर when did you came to know कि सीवी ड्रॉप करना है, एंड आफ्टर दैट हाउ यू ड्रॉप द सीवी, ईच एंड एवरीथिंग, ये बताओ यार। सर 20th और आई गेस 19th को मुझे मैसेज आया, मेरे फैकल्टी थे कॉलेज के, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि ऐसे ऐसे वैकेंसी निकला है पुणे में। तो ऐसे बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं व्हाट्सएप पे, तो मैं बिलीव नहीं किया फर्स्ट टाइम में। तो फिर मैं वो मैसेज देख के एयरपोर्ट पे गया और मैंने उनसे पूछा कि ये जेन्युइन मैसेज है या नहीं है। तो उन्होंने कहा मुझे कि हाँ ये सच है कि वैकेंसी निकली है पुणे में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो फिर उस समय में मैं रिज्यूमे निकलने ही गया था, तो मैं फिर घर पे आया। और पुणे में कैसा है सर, 4 बजे सब सारे शॉप्स क्लोज हो जाते हैं और मुझे 5 बजे मैसेज आया था। तो फिर प्रिंट आउट निकाले तो कहाँ से निकाले, क्योंकि प्रिंट आउट तो मैंने निकाल के नहीं रखा था, जो आपने सीवी मुझे बना के जो भेजा था। तो फिर उसके बाद मेरे एक फ्रेंड थे यहाँ पे सोसाइटी में ही, तो उनके पास मुझे मिला प्रिंट आउट। तो मैंने फटाफट से जाके प्रिंट आउट निकाला और आई गेस 5 बजे जो मैसेज आया था, मैंने 7 साढ़े 7 बजे सीवी जाके ड्रॉप कर दिया ड्रॉप। इंटरव्यू में। हाँ, तो फिर दूसरे दिन ही आपका मुझे सुबह सुबह कॉल आया आई गेस 8 बजे की, तुषार वैकेंसी निकली है पुणे बेस के लिए। तो मैंने आपसे कहा सर मैंने अप्लाई कर दिया ठीक है। फिर वो उसी दिन ऑनलाइन पोर्टल भी खुला, जिसमें नागपुर, अहमदाबाद और पुणे, जिसके मतलब एक औरंगाबाद। पोर्टल ओपन, हाँ, औरंगाबाद, हाँ एक पोर्टल में 4 पोर्टल ओपन, वैकेंसी। हाँ, और साउथ का भी पोर्टल ओपन हुआ था उस समय पे। और फिर मैंने सीवी ड्रॉप किया और फिर मेरे फ्रेंड्स ने, जो मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स थे वो ग्रुप में, उन्होंने भी जाके ड्रॉप किया। और एमबीए के स्टूडेंट्स भी थे सर, उन्होंने भी जो ड्रॉप किया जाके, ठीक है, जो मेरे ओके सीनियर्स ओके। थे। हाँ, तो फिर तो शायद एक एक एमबीए की स्टूडेंट है जिसका सीवी मेरे साथ शॉर्टलिस्ट हुआ और मेरा हुआ, ठीक है। 23rd को मुझे कॉल आया कि आई एम कॉलिंग फ्रॉम इंडिगो एंड योर सीवी इज बीन शॉर्टलिस्टेड। सो मुझे उन्होंने 2-3 क्वेश्चंस पूछे फोन पे ही कि आप रोटेशनल शिफ्ट में काम कर सकते हो, और मुझे सैलरी भी बताई उन्होंने कि मैंने यस यस कहा, आई एम प्रीटी मच कंफर्टेबल विद इट। और फिर ठीक है बोला, फिर यू विल गेट अ मेल, ऐसे मुझे बोला उन्होंने। फिर उसके बाद मुझे मेल आया या इंडिगो की तरफ से कि फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए। और फिर मैं जिस दिन इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, वो उसमें डेट 2 महीने पहले का लिखा था जो हाँ मेल हाँ मुझे हाँ, आया था। मैंने देखा। हाँ हाँ हाँ, तो फिर मैं सोचा कि यार मेरा एक तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ये सब चीजें हो रही है, और मेरा ही हाँ नसीब इतना खराब क्यों है कि मुझे ऐसा मिला है, ऐसा मैं हाँ सोचने हाँ लगा। हाँ फिर मैंने वही रिप्लाई किया वो मेल को कि ऐसा ऐसा शायद आपने मिस्टेक किया है, इंटरव्यू डेट मुझे रिकन्फर्म करनी है। हाँ तो हाँ फिर उन्होंने कहा, फिर उनका रिप्लाई आ गया कि ऐसा ऐसा इंटरव्यू डेट है करके। हाँ हाँ। फिर जिस दिन इंटरव्यू था उस दिन मैं गया, मतलब मुझे 1 बजे बुलाया था और हम्म मैं शायद 12:30 बजे निकला घर से, क्योंकि मेरा बहुत पास ही है घर, हम्म। हार्डली 10 मिनट्स लगता है सर जाने के लिए। तो मैं निकला घर से 12:30 बजे और वहां पे पहुंचा। वहां पे पहुंचने के बाद कम से कम 15 कैंडिडेट्स ऑलरेडी आ चुके थे वहां पे। हाँ हाँ और 15 कैंडिडेट्स आ चुके थे और कुछ फ्रेशर्स थे। और फिर जो मैंने देखा कि एक मेरे कॉलेज से भी एक स्टूडेंट थी वहां पे, ठीक है। तो फिर मैंने जाके बात की कि कैसा क्या है एविएशन। तो जब वो आई मुझे ऐसा लगा कि अगर मेरा भी एविएशन मैनेजमेंट है, उसका भी एविएशन हाँ हाँ। मैनेजमेंट है, और वो मेरे से ओवर क्वालिफाइड थी। मुझे हाँ, ऐसा वो लगा एमबीए कि थी, तू बीबीए था। हाँ हाँ हाँ, तो मुझे ऐसा लगा कि अभी अगर ये मेरे साथ भिड़ गई तो हाँ फिर हाँ इसको ही शॉर्टलिस्ट करेंगे, क्योंकि इसके बाद डिग्री एक्स्ट्रा है मेरे से। हाँ हाँ पर हाँ हाँ मैंने फिर वो टाइम पे ऐसे सोचा कि मेरे पास जो शस्त्र है जो आपने मुझे क्रैश कोर्स में दिए हाँ 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 हाँ। हैं नहीं यार, वो मेरे उस पास उस है जो उस ये। उस शस्त्र के सामने तुम अगर पीएचडी हो, एमबीए हो, हाँ या तुम एक्स एयरलाइंस के एम्प्लॉय क्यों ना हो, ठीक है, वो सब हाँ, फेल है यार, है ना, सब यस सर, फेल है यस वहां। सर। हम्म, हाँ, तो आगे बताओ, फिर आगे बताओ। मैं फिर आपके जो नोट्स थे, वो जो हाँ हाँ हाँ। आपकी जो notes थे, वो मैंने फोटो खींच के लेके गया था। वो फिर मैं वो हम्म। रीड करने लगा, रिवाइज करने लगा कि अगर ऐसा पूछेंगे तो ऐसे मुझे बोलना है, कैसा अप्रोच रखना है, कैसे आपने मुझे सिखाया था क्लास में। और मेरा एडवांटेज ये था कि
आई गेस मैंने 1 जून को मेरा खत्म हो गया था आपके साथ क्रैश कोर्स। उसके बाद हम्म। जैसे वैकेंसी निकला तो मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी कि सर आई वांट एन रिवीजन हाँ हाँ। क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस, क्योंकि बीच में जो हम्म। ड्यूरेशन था उसमें मेरे को, मैं प्रैक्टिस तो कर रहा था, कम्युनिकेशन स्किल्स का भी प्रैक्टिस कर रहा था मैं, बट हाँ हाँ। इतना इंटरव्यू का तो जो अप्रोच रहता है, इंटरव्यू का जो मॉक इंटरव्यू वगैरह रहते हैं, क्योंकि एक मॉक इंटरव्यू तो मेरा हो चुका था। तो फिर हम्म। मैंने आपको रिक्वेस्ट की कि सर आई वांट एन एक्स्ट्रा क्लासेस, तो आप हाँ हाँ मुझे हाँ। प्लीज ऐड कर दीजिए। तो आपने मुझे ऐड किया। तो वो जो 3-4 क्लासेस जो लास्ट मैंने इंटरव्यू के पहले जो अटेंड किए, तो हाँ हाँ हाँ। उसमें पूरा जो 15 दिन का मेरा क्रैश कोर्स था, पूरा का पूरा रिवाइज हो गया, पूरा पूरा रिवाइज आपके होता सामने आके। है। हाँ, कि मैंने ये चीजें ये क्लास क्रैश कोर्स में पढ़ी है और मेरे को ऐसे बोलना है। ठीक है, फिर हम्म। और एडवांटेज ये था कि आई गेस एक दिन, जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उस दिन भी क्रैश कोर्स मैंने अटेंड अटेंड किया किया। था सुबह। हाँ, सुबह, और उस दिन हमने एसआरटी किया था। हाँ हाँ और वो हाँ। एसआरटी कि वो एडवांटेज ये हुआ कि मेरा माइंडसेट वो इसमें चला गया था कि हाँ, कि कुछ भी क्वेश्चन पूछे कि मेरे को थॉट प्रोसेस मेरा चल रहा था वैसे, कि ये मेरे को ये बोलना अंदर ही है अंदर करके। दिमाग में चलते रहता ना कि अंदर ही हाँ, अंदर है। जैसे बैट्समैन के साथ सेट हो जाता है ना थोड़ा टाइम बाद अगर हाँ स्पीच पे स्पेंड करते हैं, वैसे मैं हाँ हाँ। आपके साथ टाइम स्पेंड किया तो मैं सेट हो गया था कि इंटरव्यू का अच्छा माइंडसेट पूरा अच्छा। क्रिएट हो गया था मैं। हाँ, हाँ 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 हाँ। तो फिर वो एक एडवांटेज मिला कि एक्स्ट्रा क्लासेस का, कि आपने जो मुझे दी। हम्म हाँ, तो हम्म। फिर जिस दिन मैं गया इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पे अराउंड 15 to 20 कैंडिडेट्स थे ऑलरेडी। और हाँ हाँ वहाँ पे जो रिजर्वेशन काउंटर है, जो वहाँ पे हाँ हाँ। बाहर बैठने के लिए जो जगह है, वहाँ पे ही सारे सारे कैंडिडेट्स बैठे हुए थे, तो मैं भी जाके वहाँ पे बैठ गया। फिर हमारे जो स्टाफ थे इंडियो के, वो एक आए, उन्होंने हमारे रिज्यूमे कलेक्ट किए। रिज्यूमे कलेक्ट करने के बाद फिर वन बाय वन जो इंडिगो का ऑफिस है वहाँ पे बुला रहे थे। हम्म। ठीक है, तो आई गेस मेरा 9th या 10th इंटरव्यू था मेरा। और 9th या 10th इंटरव्यू में मैं जब गया अंदर, तो वहाँ पे एचआर और एयरपोर्ट मैनेजर थे इंटरव्यू के लिए। हम्म। तो मुझे उन्होंने पहले पूछा कि ज़्यादा वेट करने करना लगा कि आपको, हैव यू वेटेड फॉर लॉन्ग टाइम। एक सेकंड तो सर, एक सेकंड ना। सो गाइस लेट मी टेल यू वन थिंग कि अब थोड़ा चीजें चेंज हो गई है, राइट? अब थोड़ा नया टाइप का इंटरव्यू हो रहा है। सो व्हेन तुषार वेंट इनसाइड, चीजें अब जूम मीटिंग में होती है, राइट? कि एचआर जो रहेंगे वो कंप्यूटर में रहेंगे और मैनेजर जो रहेंगे उनके पीछे बैठे रहेंगे। डिपेंड करता है बेस टू बेस। नागपुर में अलग हो रहा है, पुणे में अलग, हैदराबाद में सामने टू सामने दोनों बैठे हुए हैं। तो अभी जब अभिजीत का इंटरव्यू आएगा तो विल गेट टू नो कि अब हैदराबाद में क्या हुआ, दोनों एक साथ बैठे हुए थे। लेकिन कभी कभार क्या होता है, एचआर नहीं पहुंच पाते वहां तक, तो एचआर क्या करते हैं कि वो ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं और पीछे जो रहते हैं मैनेजर अवेलेबल रहते हैं या एयरपोर्ट मैनेजर रहते हैं वहां पे। तो रांची में भी सेम हुआ, यहाँ भी सेम हुआ। ओके तुषार, सो व्हेन यू एंटर्ड, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क एंड हाउ यू रिप्लाइड? बताते जाओ यार लाइन से अब। सर, जैसे ही मैंने डोर केबिन ओपन किया, जो एक क्लासरूम है अंदर, एक आपको मालूम होगा हाँ हाँ शायद। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो वहाँ पे था मेरा इंटरव्यू। तो मैं जैसे डोर ओपन किया, आई सेड मैं कम इन सर। तो बोला यस यस प्लीज कम इन। देन दे वो कंफर्टेबल फील कराते हैं आपको, जब अंदर जाते हो तो पूछते हैं कि हम्म वो भी ग्रीट करते हैं कि गुड आफ्टरनून और हाउ आर हम्म यू पूछते हैं। तो इट मेक्स यू प्रीटी मच कंफर्टेबल इन दैट। तो मेरे को बोला उन्होंने, हाउ आर यू वगैरह पूछा। तो उन्होंने सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन दिया कि वो कौन है करके, और जूम में जो बैठे हुए हैं हम्म लैपटॉप में वो कौन है करके उन्होंने बताया। तो फिर मैंने ठीक है बोला। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये था, एचआर के साथ था मेरा फर्स्ट, मतलब जो मेरा राउंड स्टार्ट हुआ वो एचआर के साथ हम्म हुआ। तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुषार, व्हाट इज योर फुल नेम। उन्होंने मुझे पूछा कि व्हाट इज योर फुल नेम। तो मैं हाँ बोला हाँ कि सर माय फुल नेम इज सो एंड सो। तो फिर पूछा कि हाउ यू हैव यू वर्क इनटू द एयरलाइन बिफोर, पूछा। हम्म तो बोला सर, नो सर, आई हैवंट वर्क इन एयरलाइन बट आई हैव एन गुड नॉलेज अबाउट द एविएशन इंडस्ट्री, ऐसा मैंने रिप्लाई दिया। तो फिर उन्होंने पूछा कि व्हाट गॉट यू इनटू द एविएशन। हाँ हाँ जैसे आपने आपने मुझे पहले ही क्रैश कोर्स में जो क्वेश्चंस थे आपके, हाँ हाँ जो मेन जो क्वेश्चंस रहते हैं, वो उसमें से का एक तो अभी थर्ड क्वेश्चन में ही आ गया। हाँ ठीक है, हाँ हाँ व्हाट यू इनटू द एविएशन, जो आपने जो रिस्पांस मुझे बोला था, हाँ 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 हाँ। जो आपने जो रिस्पांस बोला था, फिर वो रिस्पांस मैंने दे दिया। ठीक है, वहां पे। तो अच्छा ठीक है अच्छा अच्छा। बोला। हाँ, तो फिर चौथा क्वेश्चन पूछा कि विच डिपार्टमेंट यू वुड लाइक टू ज्वाइन। हाँ हाँ ठीक है, फिर बोला सर आई वांट टू ज्वाइन एज अ सिक्योरिटी ऑफिसर, सीधा बोल दिया। क्योंकि हाँ हाँ कहीं ना कहीं मैं वही अप्रोच के साथ गया था
और वही मेरे को कंपनी में वही ज्वाइन करना था एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर। ज्वाइन करना तो तो सिक्योरिटी करूंगा और मैं करूंगा नहीं, है ना? सही है। देन क्या हुआ? देन तुषार, देन व्हाट हैपेंड? तो फिर हाँ, तो फिर ठीक है बोला। तो फिर उन्होंने ओवर टू जो ये थे मैनेजर थे, एयरपोर्ट मैनेजर, उनको किया। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि यू वांटेड टू वर्क इनटू सिक्योरिटी, व्हाट डू यू नो अबाउट द सिक्योरिटी। तो फिर आपने जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोले थे वो मैंने बोल दिया, और थोड़ा बहुत एविएशन सिक्योरिटी के बारे में जो बोला, जो मैंने मतलब पढ़ा था मेरे एकेडमिक्स में। हाँ 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 हाँ। ओके ओके बोले। तो फिर उन्होंने मुझे एसआरटी पूछा, सर एक एसआरटी पूछा कि कौन सा एसआरटी था? उन्होंने पूछा कि यू आर वर्किंग इन द एयरपोर्ट एंड देयर इज एन इमरजेंसी, देन हाउ विल यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, ये ओके ऐसे ओके। मुझे पूछा। तो उन्होंने मुझे ये ओके नहीं तुषार, पूछा देन कि आई विल सजेस्ट यू कि टेल आवर व्यूअर्स दैट व्हाट यू सेड, राइट, ताकि थोड़ा बहुत इनको आइडिया तो लगे कि क्रैश कोर्स में पढ़ाता क्या हूं मैं, राइट? तो टेल देम कि व्हाट यू सेड। सर कहीं ना कहीं जब उन्होंने मुझे ये क्वेश्चन पूछा तो मैंने सोचा कि इनका मोटिव का ये क्वेश्चन पूछने का, कि मुझे उन्होंने इमरजेंसी नहीं बताई, बट ऐसे ही बोला कि क्या इमरजेंसी होगी। तो मैंने आज्यूम किया सर इफ देयर इज एन फायर इमरजेंसी, क्योंकि एयरपोर्ट में फायर इमरजेंसी होती है, बॉम्ब थ्रेट होता है, मेडिकल इमरजेंसी होती है, या ऑयल स्पिलेज वगैरह जैसे रैंप में होता है। तो हाँ आई हाँ एम प्रीटी मच अवेयर अबाउट दी व्हाट आर दी इमरजेंसी प्रोसीजर्स आर बीइंग कैरिड आउट एट दी एयरपोर्ट। सो मैंने बोला सर इफ देयर इज एन फायर इमरजेंसी माय फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी टू प्रोटेक्ट द पीपल अराउंड द फायर। ओके, तो मैं सबसे पहले जो फायर के आसपास जो लोग हैं उनको इवैक्यूएट करूंगा वहां से। उसके बाद जो एम्प्लॉयज है उनको भी करूंगा जो हेल्प में है, और एम्प्लॉयज के साथ मैं ट्राई करूंगा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने के लिए, फायर को ओवरकम करने के लिए। उसके बाद मैंने कहा सर अगर फायर कंट्रोल में नहीं हो रही है तो फिर मैं जो फायर जो टीम रहती है एयरपोर्ट में उनको मैं कोऑर्डिनेट करूंगा, ऐसा मैंने बोला। और मैंने ये भी बोला कि देयर इज एन emergency response procedure at the it place as the airport and an emergency evacuation plan, so I will definitely follow that and I will protect the people first, then I will protect myself, ऐसे मैंने ओके। बोला। ना फुल हाँ फुल मतलब फुल गाइडेंस, ना फुल गाइडेंस, फुल कोचिंग, हाँ, है ना? फुल कोचिंग, कोच क्योंकि रिस्पांस। क्योंकि आपने जो बोला था कि स्टेप बाय स्टेप बोलो, हाँ हाँ स्टेप बाय स्टेप बोलो, आपने बोला था कि मैंने स्टेप बाय स्टेप ही ऐसे मैंने बोल दिया मस्त एकदम बना के आंसर, ठीक है। हाँ हाँ तो हाँ। ठीक है, ओके ओके बोला। तो व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू नो अबाउट द सिक्योरिटी पूछा तो मेरे को पूछा कि उन्होंने कि ये कहाँ से मालूम, क्योंकि ये सारी चीजें कि एक एयरलाइन वाला ही बता सकता है जो अगर वो काम किया हो, और या फिर हाँ कोई हाँ बाहर का जो एयरलाइन में हाँ। काम किया हो वो बता सकता काम किया हो तो वही है। बता सकता क्योंकि है। लोग क्योंकि होता है क्या ये ना, बहुत से लोगों ने काम नहीं किया है और वो क्या है, वीडियो बना देते हैं, है ना? वो वीडियो क्या है, उससे लोग मिसगाइड हो जाते हैं यार। तो जो मैं चीजें बता रहा हूँ गाइस, लेट मी टेल यू एवरीवन की आई रन अ पेड क्रैश कोर्स, एंड इन दैट क्रैश कोर्स आई यूज्ड टू कोच पीपल फॉर ग्राउंड स्टाफ एंड कैबिन क्रू, और उसमें आपको जेन्युइन गाइडेंस देता हूँ फॉर रिगार्डिंग ईच एंड एवरीथिंग। सो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैंने बताई है दैट इज अ जेन्युइन थिंग। अब जाके वीडियोस देखो, ऊपर आ रहा होगा आई बटन पे कि जेन्युइन ड्यूटीज ऑफ सिक्योरिटी ऑफिसर है क्या, मतलब कि असली ड्यूटी होती क्या है, लोगों को पता ही नहीं है। लिटरली इफ यू से दैट रिस्पॉन्स टू इंटरव्यूअर, वो जरूर पूछेगा कि भाई कैसे पता तेरे को, ये कैसे पता? हाँ, यही क्वेश्चन वो मुझे पूछते ही उन्होंने है। पूछा। हाँ हाँ हाँ, तो फिर तो मैंने बोल दिया कि मेरे एक से एम्प्लॉय थे इंडिगो के जो मेरे फैकल्टी थे, कॉलेज हाँ में हाँ आए थे हाँ मुझे पढ़ाने के लिए। तो उनसे मुझे ये रिस्पांस मिला, उन्होंने मुझे ये कहा कि इंडिगो का ऐसे ऐसे होता है करके। हाँ 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 तो उन्होंने मुझे वो फैकल्टी का नाम भी पूछा था, मैंने हाँ बोल हाँ। दिया फैकल्टी का नाम क्या है करके। तो वो रिकग्नाइज्ड हो गया, फिर वहां पे कन्विंस हो गए उस समय। अच्छा 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 अच्छा। तो फिर पूछा कि वाई इंडिगो एयरलाइंस पूछा, हाँ हाँ ठीक है। हाँ फिर मैंने बोल दिया कि जैसे कि वन ऑफ माय फैमिली मेंबर्स इज आल्सो वर्किंग विद द एयरलाइंस एंड वहां से भी मुझे मोटिवेशन मिली, क्योंकि बचपन हाँ से ही हाँ। मैं देख रहा हूँ वो काम कर रहे हैं अराउंड 15 इयर्स। हम्म, और कहीं ना कहीं मैंने आई एम प्रीटी मच अवेयर अबाउट द वर्किंग culture about the Indigo, and Indigo हम्म, also looks after the employee and got best place to work award in 8 years in a row। और जो मेरे फैकल्टी थे वही मुझे उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि अगर इफ यू वांट टू मेक एन गुड करियर rather than joining any other airlines, go for the best। So I wanted to join best airline, that is why I wanted to join as a Indigo। वैसे मैंने मैंने उनको बोल दिया, ठीक है। तो ओके ओके बोला।
तो उसके बाद ये यही हुआ। फिर उन्होंने मुझे बोला कि यू मे लीव फॉर द डे। ठीक है। अच्छा अच्छा। तो मैं सोचा यार मेरा इतना अच्छा इंटरव्यू हुआ, फर्स्ट राउंड इतना अच्छे से गया, मैंने हाँ। कॉन्फिडेंटली इतने सारे आंसर्स दिए और हम्म, स्माइलिंग अप्रोच रखी, मतलब हाँ, प्रीटी मच सब अच्छे कुछ से। वैसे ही रखा जैसे रखना चाहिए था, एक स्टैंडर्ड इंटरव्यू के हाँ हिसाब से। हाँ। तो मैं सोचा यार एक ही क्योंकि मेरे से पहले जो भी लोग थे ना हाँ जिनका हाँ। हुआ था, उनका फर्स्ट राउंड ही हुआ था बस। हम्म। एक का भी सेकंड राउंड में गए ही नहीं थे वो हाँ, लोग कोई एक फर्स्ट से साथ। सेकंड में नहीं गया था। हाँ। तो फिर मैं जैसे ही बाहर आया वहां से क्लासरूम से, और वहां पे जो सिटिंग अरेंजमेंट है, सोफा है, वहां पे मैंने बैग रखी थी। तो हम्म, वहां पे मैं फाइल वगैरह भरने लगा तो मुझे पीछे से एक स्टाफ का कॉल आया। दे सेड मी कि यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम, यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर सेकंड राउंड। तो सर हम्म, ऐसा कॉन्फिडेंस एक लेवल पे मेरा गया हाई, एकदम जैसे रॉकेट उड़ता है ना। मैं समझ हाँ गया हाँ मेरा 90% सिलेक्शन हो गया है। हाँ हाँ हो हाँ। गया मेरा 90% सिलेक्शन। तो फिर मैं 5 मिनट वेट किया वहां पे। तो वहां से फिर मैंने बोला था कि आई वांटेड टू ज्वाइन एज अ सिक्योरिटी ऑफिसर। तो एयरलाइन से सिक्योरिटी ऑफिसर जो मैनेजर थे वो आ गए वहां पे हम्म। मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, सेकंड राउंड। ठीक है। अच्छा अच्छा, तो जैसे सिक्योरिटी ही मैनेजर। हाँ हाँ, तो जैसे ही आए, क्योंकि वो क्या करते हैं सर, कहीं ना कहीं आपने भी मुझे बोला और मैंने देखा भी है कि इफ यू से रैम देन रैम का मैनेजर आके इंटरव्यू लेता है। इफ यू से हम्म, कस्टमर सर्विस तो कस्टमर सर्विस वाला आके लेता है। तो मैं समझ गया अगर सिक्योरिटी मैनेजर आए तो हो गया मेरा काम। हाँ ठीक हाँ है। हाँ। फिर वो जैसे वो आए वहां पे ऑफिस में, तो ही आस्क्ड मी टू सिट इन मराठी। डायरेक्टली उन्होंने कॉन्वर्जेशन मराठी में स्टार्ट किया। उन्होंने मुझे डायरेक्टली बोला कि मराठी, बस। कुछ पूछा नहीं कि हाय हाँ तुषार हाउ आर यू, गुड, ऐसा कि नहीं नहीं डायरेक्टली नहीं नहीं। मराठी? हाँ मैंने ग्रीट किया उनको कि गुड हाँ हाँ आफ्टरनून सर। और मैं जानबूझ के मेरा जो फाइल था ना, वो जो हम्म। डॉक्यूमेंट्स थे, जो मेरे हाँ हाँ, सर्टिफिकेशंस वगैरह जो थे, वो मैं ट्रांसपेरेंट लेके गया था, ट्रांसपेरेंट। ताकि दिखे ऊपर से। हाँ ताकि दिखे। आइटा, हाँ तेरा वो आइटा हाँ वाइटा का सर्टिफिकेट क्या क्या जो है तुम लोग हाँ। का, है ना? यस यस। हाँ हाँ तो हाँ मैं वो ट्रांसपेरेंट फाइल लेके गया था और आईआईटा का भी ऊपर ही रखा था सबसे पहले सर्टिफिकेट। ठीक हाँ है। हाँ हाँ हाँ। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि डायरेक्टली मराठी में कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किया कि तू बस बस तुषार, तो ही सेड मी सीट सीट। तो हाँ फिर मैं हाँ। बैठा उनके सामने। तो हम्म। उन्होंने मुझे फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा कि आप जब कॉलेज में थे तुषार तो तुषार, यार मैं सजेस्ट करूंगा यार मराठी में बोल के थोड़ा थोड़ा कॉन्वर्जेशन को रखना यार, थोड़ा सा क्या है ना, आई लव ओके मराठी, ओके थोड़ा सा बताना यार, थोड़ा सा। आई मीन अभी ओके सजेस्ट की मराठी भी बोल देना, थोड़ा सा थोड़ा कन्वर्ट कर देना इसे हिंदी में, so that कि थोड़ा सा क्या है इंटरेस्टिंग बने थोड़ा सा। लेटर ऑन आई विल सजेस्ट ओके की थोड़ा हिंदी मत बताना। ओके। ओके ओके। तर सर त्यानंतर मला त्यांनी सांगितलं की तू कॉलेजमध्ये जेव्हा होतास तेव्हा तू काय 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 केलंस कॉलेजमध्ये असताना, हाँ जब हाँ। व्हेन यू वर इन द एकेडमिक्स व्हाट यू हैव डन, ऐसे मैंने उनको हम्म, उन्होंने मुझे फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा। तो मैंने हाँ बोला कि सर, सर मैंने जब कॉलेज में था, जैसे मैंने रिज्यूमे में आपने मुझे लिख के दिया था, और कहीं ना कहीं ये बात सच भी है। तो मैंने डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था हाँ और हाँ क्रिकेट खेला कॉलेज की तरफ से, और हाँ एक्सटेम्पो हाँ डिबेट कंपटीशन जो रहते हैं वो किया। और हाँ हाँ। कॉलेज में जब था कि हमने इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए, कबड्डी टूर्नामेंट हम्म ऑर्गेनाइज किए, स्टेट लेवल तक किए। उसके हम्म बाद ये जो डिगी हिल्स है यहाँ पे हम्म धानुरी में, जो पहाड़ है, हम्म, वहां पे हमने ट्री प्लांटेशन किया। हाँ हाँ और हाँ हाँ ये सारी चीजें बोल लिया। और एक लास्ट में एक चीज ऐसे बोली मराठी में की सर कोविड जेव्हा होतं, फर्स्ट वेव जेव्हा आली होती तेव्हा मी आणि माझ्या फ्रेंड्सने कॉन्ट्रीब्युशन केलं होतं पॉकेट मनी मधून। आणि जे गोरगरीब असतात सर त्यांना आम्ही हँड सॅनिटायझर आणि मास्क डोनेट केले होते आणि अवेअरनेस स्प्रेड केली होती की तुम्ही तुमची काळजी घेणारं या जगामध्ये कोणी नाहीये आणि तुम्ही प्लीज मास्क आणि सॅनिटायझर घाला आणि सारखं सारखं हात धुत राहा, जेणेकरून जो धोका तुमचा टळून जाईल। हाँ हाँ तो उसके वजह से वो मैंने किया था और वो मुझे रिकग्नाइजेशन भी मिला था कोविड योद्धा का, वो सर्टिफिकेट था मुझे मेरे पास। हाँ तो हाँ वो हाँ चीज मैंने उनको बता दी, वो उनको इम्प्रेसिव लगी। तो हाँ हाँ अच्छा हाँ अच्छा मुझे बोल। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे जो मेरा सर्टिफिकेट देखा कि वो पूछा मुझे क्या है करके। तो मैंने हम्म दिखाया कि मेरा आईआईटी का सर्टिफिकेट है। और उसके हम्म बाद मेरा इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट था वो देखा। तो हम्म मुझे पूछा कि इंटर्नशिप में क्या क्या किया। तो मैंने बोला कि हम्म सर आज तक जितना सीखा, जितना एविएशन में हम्म मैंने जो जो भी सीखा, वो सिर्फ हम्म मेरा बुक का नॉलेज था। प्रैक्टिकल हम्म नॉलेज मैंने जब वहाँ पे इंटर्नशिप करी
तो मुझे हाँ हाँ, प्रैक्टिकली वहाँ पे एयरपोर्ट में आ गया तुम लोग का इंटर्नशिप रहता है ना, एयरपोर्ट में रहता है इंटर्नशिप आ गया। यस हाँ यस। हाँ तो हाँ हाँ मैंने प्रैक्टिकली देखा कि रैम सेफ्टी क्या होता है, जो हाँ हाँ रैम सेफ्टी जो ट्रेनिंग रहता है, इमरजेंसी रिस्पांस प्रोसीजर का ट्रेनिंग रहता है, वो मुझे मिला था। और मैंने हम्म, सेफ्टी ऑफिसर के साथ दे मतलब उनके साथ रह के मैंने देखा कि कैसे काम करते हैं, सेफ्टी ऑडिट्स कैसे करते हैं। उसके बाद जो प्रोसीजर रहते हैं, मेरा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस कंपनी था वो, तो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस कैसे करते हैं, उसका प्रोसीजर क्या क्या रहता है, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या किए जाते हैं। तो हम्म, ये सारी चीजें मैंने देखी वहां पे, मैंने ये सब सारी चीजें मैंने सीखी, तो मैंने ये सब बोल दिया। तो ओके ओके बोला उन्होंने। तो उसके बाद मेरा उस उन्होंने ये देखा, पासपोर्ट देखा। बोला हाँ हाँ कि पासपोर्ट मेरा मेरा पासपोर्ट में जो फोटो था वो 2018 का था। तो हाँ हाँ उन्होंने मेरा पासपोर्ट की फोटो देख के बोला कि तेरा वेट कम हो गया है करके। हाँ मैंने बोला कि यस सर, मेरे को इंजरी हो गई थी, फुटबॉल खेल रहा था मैं, तो हाँ उसके हाँ वजह से मुझे बेड रेस्ट थी 4 महीने, तो मेरा वेट गेन हो गया था उस टाइम पे। हाँ तो हाँ अभी क्योंकि अभी मैं कंटिन्यू स्पोर्ट्स खेलता हूँ तो मेरा वेट कम हो गया है, और अभी भी मैं हम्म, खेलता हूँ। और अराउंड 2020 में हमने धानुरी में एक जो मेरा लोकल एरिया है, इट्स नियर फ्रॉम द हम्म, एयरपोर्ट, वहाँ पे हमने क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करी थी। तो हम्म, वहाँ पे एक एयरलाइन का एक ये भी था, टीम भी आके खेल के गया था। तो सर हम्म। मैंने उसी दिन डिसाइड किया था कि अगर एयरलाइन ज्वाइन करता हो तो मैं आपका कंपनी का टीम ज्वाइन करूंगा। अच्छा तो अच्छा और अच्छा। मैं, अगर मुझे अभी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं डेफिनेटली करूंगा सर। हम्म। तो ये मैंने उनसे कहा। और तो ही वॉज प्रीटी मच कंफर्टेबल विथ मी, एंड हमारे मतलब इन जनरल बातें हो रही थी कि किधर हम्म, रहते हो क्या है। तो मैंने बोला, मुझे पूछा कि कितना घर कितना दूर है यहाँ से। तो हाँ मैंने हाँ बोला कि सर अराउंड 1.5 किलोमीटर है। तो पूछा कि हम्म, साइकिल से आओगी क्या, तो मैं डेफिनेटली हाँ आऊंगा सर। तो हाँ हाँ बोला कि आप भी कैसे आए हो। तो मैं बोला कि सर मेरा जो स्कूटी है मैं वो लेके आया हूँ। ओके हम्म। ओके बोला उन्होंने। तो बोला, ओके तो ओके, तो उन्होंने, सर एक सेकंड वेट करना ना। सो गाइस लेट मी मेक वन थिंग क्लियर, कि आप जो बोलते हैं ना कि इंग्लिश में ही इंटरव्यू दे सकते हैं या इंग्लिश में ही फ्लुएंसी होनी चाहिए, वो उतना मैटर नहीं करता है। राइट, तुषार का इंटरव्यू इज कंडक्टेड इन मराठी। राइट, सेकंड राउंड इज कंडक्टेड इन मराठी। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई लड़के बाहर से इंटरव्यू देने आते हैं तो उनको पकड़ने का यही तरीका है ना, बोले मराठी में बात करो, समझ में आ जाएगा कि भाई तुम लोकल हो कि नहीं हो। लेकिन इसको एक चकमा देने का भी तरीका है, वो चीज मैं बताता हूँ। क्रैश कोर्स में तो ज्वाइन करो, क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 15 अगस्त। ठीक है। तो ये चीजें तो मराठी में भी इंटरव्यू होते हैं। ठीक है, हिंदी में भी इंटरव्यू होता है। ठीक है भाई, कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने हिंदी में इंटरव्यू दिया, सेलेक्ट हुए, नौकरी भी छोड़ दी उन लोगों ने। ठीक है, तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल। ऐसा जरूरी नहीं है कि इंग्लिश फ्लुएंसी नहीं, क्वालिटी मैटर करनी चाहिए। क्वालिटी मैटर करती है, आप सारे पैरामीटर में फिट बैठने चाहिए। So Tushar was guys fitting in all the parameters which airlines wanted, right? And this is what I have taught in the crash course. But I guess if you think so, so ये चीजें तो वो पैरामीटर फिट होना जरूरी है। उसके बाद तुम्हें इंग्लिश थोड़ी कम आए तब भी चलेगा, क्योंकि मैं, देखो यार, मैं शशि थरूर तो नहीं ढूंढ रहा हूँ कि इंग्लिश मुझे ज्ञान देना है। नथिंग लाइक दैट। मुझे तो ऐसा आदमी चाहिए जो कि काम करेगा, है ना, मेरी बात माने, मेरा काम करे, काम फंसा हुआ से काम को करे अच्छे से, है ना, कुछ काम लोड हुए तो उसको संभाले। तो ऐसे आदमी की तलाश वहां पे ज्यादा है, अदर देन सेइंग कि मैं इंग्लिश इंग्लिश झाड़ के निकल जाऊंगा। नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो दे यूज्ड टू चेक ऑल द थिंग्स, किसी इंग्लिश आती है कि नहीं, इंग्लिश पास, मराठी आती है कि नहीं, मराठी पास, हिंदी आती है कि नहीं, हिंदी पास। सो तीन तीन लैंग्वेज चेक करते हैं करने वाले। ओके तुषार, कंटिन्यू कंटिन्यू। कि जो अभी सर आपने बात कही कि ये चीजें है ना सर, दूसरे स्टेट्स में भी होते हैं। जैसे वन ऑफ माय हाँ फ्रेंड जिसने हैदराबाद के लिए इंटरव्यू दिया अभी रिसेंटली, हाँ और हाँ वहाँ पे मैनेजर ने उन उसको देखा कि उसने कंप्लीट किया है एजुकेशन पुणे से, हाँ हाँ और ही इज अज्यूम दैट ही इज फ्रॉम हैदराबाद। ठीक है। हाँ हाँ तो उन्होंने वो हैदराबाद के है, उसका नेटिव प्लेस, हो उसको लोकल लैंग्वेज आता है। तो हम्म, उन्होंने डायरेक्टली, जैसे उन्होंने देखा उसका आधार कार्ड, तो उन्होंने डायरेक्टली हम्म, कॉन्वर्गेशन उन्होंने तेलुगु में स्टार्ट कर दी हाँ डायरेक्टली। हाँ तो फिर उसने भी तेलुगु में स्टार्ट करे थे, तो वहां पे उसका जेन्युइनिटी वो बच गया, मतलब वो वहां पे हाँ हाँ, बच गया थोड़ा सा। कि हाँ, कि ऐसा हो गया करके तेलुगु में उसका हो गया। तो ऐसे हुआ सर उसके साथ। तो फिर मुझे बोला उन्होंने, जैसे बात कर रहे थे हम, सिक्योरिटी मैनेजर के साथ मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बात करते करते बोला कि एविएशन सिक्योरिटी इज प्रीटी मच डिफरेंट व्हाट यू सी आउटसाइड द एविएशन हम्म, वर्ल्ड। तो सर बोला, यस सर, आई एम प्रीटी मच अवेयर अबाउट इट। ओके। तो अच्छा, यू आर अवेयर अबाउट इट, देन टेल मी व्हाट इज सिक्योरिटी, बोला उन्होंने।
तो फिर मैंने वही जो हमारा जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज रामबान पूरी जो चिपका था दिया। मार दिया मैंने फिर वहां पे। वही आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे वो मैंने बोल हम्म। दिया, एक्सप्लेन कर दिया। तो मुझे पूछा उन्होंने कि कहाँ से पता चला। हाँ तो हाँ। फिर एक जो फैकल्टी थे वो हम्म। फैकल्टी का नाम बोल दिया फिर से मैंने। हाँ हाँ हाँ। तो फिर ठीक है फिर उन्होंने बोला कि ठीक है ओके ओके। फिर उसके बाद फिर यही थोड़ा इन जनरल टॉक्स हुआ उनके साथ। तो उन्होंने हम्म। बोला कि उन्होंने मेरे रिज्यूमे में कुछ तो लिखा। और मैं बोला कि ठीक है, मेरे को ऐसा लग रहा था कहीं ना कि अच्छा इंटरव्यू गया है फर्स्ट अटेम्प्ट में और हो हाँ हाँ। सकता है, चांसेस नहीं। पर कैसे अभी मैं 90% ही क्यों श्योर था, क्योंकि सर 10% एयरलाइन के मन पे डिपेंड होता है उनको लेना है या नहीं लेना है हाँ, उनको। रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल देखो यार, एक चीज बता दूं, फॉर एग्जाम्पल आप लोग गए हो कि कस्टमर सर्विस का इंटरव्यू देने, अब उनको चाहिए कस्टमर सर्विस में एक्सपीरियंस स्टाफ ही चाहिए, तुम्हें नहीं लेंगे। तो ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सिक्योरिटी की वैकेंसी आई हुई थी वहां पे, एक चीज और बता दूं, सिक्योरिटी की वैकेंसी थी, तो आप देखो यार, होता कि आप लोग को बोला गया कि बेसिक एफसेक है वो वही अप्लाई करेगा, लेकिन ये तो आपकी गलती थी भाई, है ना। बेसिक एफसेक मिला तो लेंगे, नहीं मिला तभी तो कोई काम करने चाहिए ना। सो इन दैट केस हाँ दे टू स्टार्ट हायरिंग दोस पीपल वर नॉट बेसिक एफसेक। ठीक है, मिला तो ले लिए, नहीं मिला तो सो दैट्स द रीजन व्हाट आई वाज टू सजेस्ट कि आप अप्लाई कीजिए। और क्रैश कोर्स के स्टूडेंट है तो फिर सोचने वाली बात ही नहीं है भाई, हर वैकेंसी के लिए अप्लाई करो। ठीक है, तो तुषार इज द ओनली गाय हु गॉट सेलेक्टेड विदाउट डूइंग बेसिक एफसेक। सिंपल है चीजें, राइट। ही वाज द बेस्ट, राइट। ही दे थॉट, एयरलाइंस थॉट दैट ही इज केपेबल ऑफ डूइंग इट, as simple as they thought he is doing of capable of doing the work, they hired him, right. So there is nothing like that कि वही वैकेंसी आई है सजेस्ट की देखो यार, वैकेंसी तो आई थी बेसिक एफसेक, उसमें लिखा भी था, आपने पढ़ा होगा, जाके फिर से जाके देखो। लेकिन he is a person who's working there, who got selected, who cracked the interview irrespective of basic एफसेक। so अगर कैंडिडेट नहीं मिलते हैं बेसिक एफसेक के तो कैसे करेंगे यार, कोई ना कोई तो चाहिए ना काम करने के लिए। काम रोक नहीं सकते, फ्लाइट ऑपरेशंस रोकेंगे तो नुकसान होगा करोड़ों का, लाखों का। तो उसके लिए कोई ना कोई चाहिए। तो सम ऑफ द केसेस, ये कभी कभार नहीं होता, तो यूज टू हायर द कैंडिडेट वर फ्रेशर। तो ये चीजें। ओके तुषार, ओके बताओ यार। सो सर फिर उन्होंने बोला कि यू मे लीव फॉर द डे एंड आवर एचआर विल लेट यू नो द फर्दर हम्म। डिटेल्स। तो ठीक है बोला मैं। फिर वहां से निकला। फिर जैसे ही घर पे आया और मैं मेरा व्हीकल पार्क कर रहा था पार्किंग में, तो मेरा जो फैकल्टी थे जिनका मैंने नाम लिया था, तो हम्म। उनके साथ तो मेरा कोऑर्डिनेशन नहीं था पहले कभी। हाँ 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 हाँ। और क्योंकि अराउंड 1.5 साल हो गया था मेरा कि कॉलेज ऑनलाइन ही चल रहा था मेरा। हम्म। और तो कभी मिला भी नहीं इतने दिन से उनको। तो उनका मुझे कॉल आया डायरेक्टली और उन्होंने मुझे कहा कि आ गया क्या इंटरव्यू देके, हाँ 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 सीधा ऐसे बोल दिया। हाँ हाँ तो हाँ। मैं सोचने लगा कि यार मैं इनको कैसे मालूम, इनको तो मैंने बताया ही नहीं कि मैं इंटरव्यू के लिए गया है करके। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे कॉल आया था एयरलाइन की तरफ से हाँ पूछने हाँ के हाँ। लिए कि आपका स्टूडेंट आया था इंटरव्यू के लिए। तो हम्म। उन्होंने मुझे ऐसा बोला। ओके ओके सर, तो आपने क्या कहा। तो उन्होंने बोला कि हाँ तो अच्छा स्टूडेंट है। और मैं कॉलेज में भी जब था ना सर, तो मैं पूरा एकदम हाँ सिंसियर था, कॉलेज अटेंड करना था। और हाँ कॉलेज मेरे से खुश इसलिए था कि मैंने कॉलेज को बहुत सारे मेडल्स और ट्रॉफी जिता के दिए थे जब मैं था वहां पे। हाँ। कॉलेज वन ईयर इन कॉलेज डेज। गुड हाँ गुड। तो अच्छा मेरा मतलब जो इंप्रेशन अच्छा था। कैरेक्टर था कॉलेज में अच्छा था। हाँ हाँ कैरेक्टर अच्छा था कॉलेज में। तो कहीं ना कहीं वो अभी मुझे हेल्प हुआ इंटरव्यू के टाइम पे। तो उन्होंने मुझे कहा कि ही इज अ गुड स्टूडेंट एंड ही इज अ गुड कैंडिडेट एंड हम्म और एक चीज थी कि जो मेरा जो बीबीए एविएशन था, वहां हम्म पे मेरे कॉमर्स के भी सब्जेक्ट थे और एविएशन के भी सब्जेक्ट थे। तो एविएशन के सब्जेक्ट में मुझे ज्यादा मार्क्स आने के और कॉमर्स के सब्जेक्ट में उससे थोड़ा कम आने हाँ के। हाँ। हाँ तो वो मुझे एडवांटेज था कि एविएशन में थोड़ा ज्यादा फोकस था मेरा। तो वहां पे जब हम्म। मेरे मार्क्स दिखाए मेरे, तो उन्होंने वो सारी चीजें देखी कि ये है बंदा करके, ही हैज एन गुड नॉलेज अबाउट एविएशन इंडस्ट्री। और मैंने इंटरव्यू में भी अप्रोच वही रखा था, क्योंकि आपने मुझे सजेशन दिया था कि मेरा जो एसओपी था वो ये था कि यू हैव टू शो व्हाट यू नो। ओके, हाँ 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 और जितना बोलेगा उतना तेरे लिए एडवांटेज, आपने ये मुझे कहा था। तो हाँ मैं हाँ। समझ गया था कि दिस इज व्हाट आई नीड टू शो देम कि आई हैव एन गुड नॉलेज अबाउट द एविएशन इंडस्ट्री। क्या हुआ मेरे पास एयरलाइन का अगर एक्सपीरियंस नहीं तो क्या हुआ। तो गेन करने में कितना देखो टाइम लगता है, भाई, सिक्योरिटी अगर करने तेरे में। पास एयरलाइंस का एक्सपीरियंस नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तू काम नहीं कर सकता है। ठीक है, ये तो
ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है। अगर एयरलाइंस का एक्सपीरियंस नहीं तो ऐसा मतलब ये तो नहीं है कि तू काम नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। वो जो है मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, सब काम कर सकते हैं। बस ये कि यार अब Yes, वही बात आती है कि चांस देने देने की बात आती है, राइट। अमेजिंग यार, जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरव्यू ही माइट बी आई मीन इम्प्रेस्ड, है ना। yes, उसने सारे पैरामीटर चेक किए, कहीं ना कहीं लगा कि यार इस लड़के के अंदर सारे पैरामीटर में फिट हो रहा है, यू गॉट फिट इन पैरामीटर, दे हायर्ड यू, राइट। yes, sir, तो वही yes, sir. चीज है, पैरामीटर में फिट होना बहुत जरूरी है यार ना। पैरामीटर में फिर फिटेड, देन फिर इंग्लिश नहीं भी आती तब भी लेंगे, सच बता रहा हूँ मैं। ये Yes, sir, yes, sir. ओके, आगे बताओ, आगे बताओ। सर फिर तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हो गया करके, और उन्होंने मुझे ये चीज कही सर ने कि दे आर मोस्टली लुकिंग फॉर एक्सपीरियंस पर्सन, दे आर हाँ नॉट लुकिंग फॉर दी फ्रेशर्स। हाँ हाँ तो मैंने सेम चीज आपको उसी दिन बोल दी कि सर कि ऐसे ऐसे हुआ है, हाँ अगर हाँ वहां पे कोई एफसेक वाला आ गया तो मेरा नहीं होगा, हाँ 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 हाँ। और एक एफसेक वाला नहीं आया तो मेरा 100% पहला प्रेफरेंस मेरे को ही था। हम्म। तो ऐसे हो गया था। तो फिर लकीली आई गॉट सिलेक्टेड। दूसरे दिन ही मेल आया मुझे इंडियो की तरफ से कि यू हाँ हैव हाँ बीन हाँ हाँ। सिलेक्टेड एज ऑफिसर सिक्योरिटी। और यार तो यार, यू नो, वन डे यू गिव अ कॉल, यू सेड कि सर मैं आईजीटी सॉल्यूशंस का मेरे को आया है, मैं सोच रहा हूँ कि ये वो आईजीटी हाँ सॉल्यूशंस। हाँ, वो उनके लिए भी मुझे कॉल, उधर वहां पे भी मैंने अप्लाई किया था। हाँ वहां हाँ पे हाँ क्यों अप्लाई किया था कि अगर यहाँ पे नहीं होता है हाँ हाँ तो हाँ हाँ। बैकअप बैकअप चाहिए था कुछ, तो कुछ मतलब फ्री तो नहीं बैठना था। हाँ, हाँ 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 तो हाँ वहां पे भी अपॉर्चुनिटी मिली थी मुझे, तो वो भी इंटरव्यू क्लियर हो गया था मेरा। हाँ हाँ, वो आईजीटी। भी इंटरव्यू आपकी वजह से हुआ था कि वही क्वेश्चन मुझे पूछे थे कि व्हाई यू वांट टू जॉइन वॉइस प्रोसेस, हाँ एंड हाँ हाँ हाँ। ऐसे ही एक दो ऐसे क्वेश्चन थे। तो हम्म। मैंने उनको बोला कि आई विल कॉल यू आफ्टर 5 मिनट्स। हाँ 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 हाँ। ठीक है। एंड देन यू तो कॉल्ड फिर मी, मैंने आप, देन यू कॉल्ड मी। हाँ, तो मैं फटाफट आपको कॉल किया, आपसे हाँ पूछा हाँ कि सर ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटी मिला है, क्या करूँ, वेट करूँ या जाने दो। तो हाँ आपने कहा हाँ। कि देख सर, अभी वैकेंसी आएगी तो थोड़ा वेट कर। ठीक है। तो आई ट्रस्टेड यू दैट दैट डे, और आप ही की वजह से जो है, आपने जो इंटरव्यू का प्रिपरेशन जो करके लिया सर, उसी की वजह से आज मैं ये दिन देख रहा हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक सर। अरे, अरे डेफिनेटली यार, दैट्स व्हाई इट्स तुषार पेड। और क्या बताऊं यार, क्योंकि यार देखो तुषार, होता क्या ना भाई, यार एक एक स्टूडेंट को मेहनत करनी पड़ती है भाई मेरे को, राइट। फॉर एग्जाम्पल इन यूट्यूब देयर आर लॉट ऑफ कंटेंट गोइंग ऑन, कचड़ा भरा पड़ा हुआ है, मिस गाइडेंस भरी पड़ी है, राइट। सो एक एक स्टूडेंट पे मेहनत करनी पड़ती है, राइट। मैं अपना टाइम देता हूँ यार, एंड क्रैश कोर्स इज क्वालिटी कंटेंट गाइस, व्हाट आई विल सजेस्ट कि आप बाकी जिन्होंने किया है उन्हें पता होगा, राइट। सो जिन्हें पता है उन्हें पता होगा कि क्रैश कोर्स इज अ क्वालिटी कंटेंट, राइट। वो दैट इज डिजाइन बाय मी, है ना, ईच एंड एवरीथिंग इज डिजाइन बाय मी, ये चीजें हैं। सो if you join in future, it will help you to crack the interview, as simple as that. It helped तुषार। and कुछ लोग आप में से सेलेक्ट नहीं हुए इंटरव्यू में, तो क्या फर्क पड़ता है यार, तो क्या फर्क पड़ता है, यू विल बी गेटिंग टू गेट सिलेक्टेड नेक्स्ट टाइम, है ना। इंटरव्यू भी और आएंगे फिर, तो देन वहां सेलेक्ट होगे, राइट। ये चीजें, अभिजीत सेलेक्ट हुआ फॉर हैदराबाद बेस, राइट। सो आफ्टर दिस अभिजीत इंटरव्यू विल कम, राइट। अभिजीत इंटरव्यू विल कम फॉर हैदराबाद बेस। और सबसे मजे की बात ये है ना कि जो नदीम, आई गेस एक नदीम नाम का लड़का था, बैंगलोर बेस से सेलेक्ट हुआ था वो, उसकी ट्रेनिंग दिल्ली में चल रही है, ठीक है। तुषार विल गो एंड ज्वाइन नदीम, ठीक है। अभिजीत विल गो एंड ज्वाइन नदीम। सो ऐसा क्या होगा ना कि ऑल द थ्री पीपल हु हैव डन द क्रैश कोर्स ऑन एविएशन लाइफ, दे विल बी एट द सेम ट्रेनिंग अकेडमी एट सेम टाइम, ये चीजें हैं। सो दैट विल बी एन अमेजिंग थिंग, ये चीजें। तो वहां से फोटो खींच के भेजेंगे, एंड देन वीडियो वहां से बनाएंगे ना कि वी आर द ऐसा वैसा, एंड देन वी आर द थ्री पीपल्स, फिर वो बात अलग हो जाती है फिर वहां पे, है ना। वो ब्रांड है एविएशन लाइफ, है ना। देखो यार, बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये वो नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन भाई क्वालिटी वाली बात आ जाती है कहीं ना कहीं, राइट। ये चीजें, वेल आई गेस यू कैन ऑल्सो अटेंड डेमो, 15 अगस्त को डेमो भी है, लेकिन डेमो में तो डेमो टाइप का ही बताऊंगा यार मैं, ये चीजें हैं। सो इट विल हेल्प यू गाइज, इट विल हेल्प यू अलॉट। एंड मैं क्या ही बोलूं, है ना, कुछ कुछ लोग दो दो बार भी किए हैं, है ना। गंगोत्री, गंगोत्री अटेंडेड ट्वाइस। गंगोत्री तेरे बैच में भी थी आई गेस, गंगोत्री हाई, यस सर, गंगोत्री was in your batch। ठीक है, तो ये चीजें ओके तुषार। सो तुषार ना भी सजेस्ट कि हाँ, देन यू गॉट अ कॉल दैट यू आर सेलेक्टेड, राइट। एंड आई गेस योर ट्रेनिंग इज ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 9th, आई गेस 9th से ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है। और बाकी जो लोग बच गए उनकी भी ट्रेनिंग जल्दी स्टार्ट होगी, जिन लोग अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट दे आर जस्ट सेंडिंग देम टू ट्रेनिंग, ठीक है। सो अभी गुवाहाटी की, सॉरी, जो अभिजीत की भी ट्रेनिंग भी 9 को चालू होगी, तो आप दोनों एक दूसरे को आई फ्लाई में मिलोगे यार, ठीक है। अब बात तुषार, अब बात करते हैं कि व्हाट द टिप्स विच यू वांट टू गिव,
ना टिप्स फॉर द सब्सक्राइबर्स, इन सब लोगों के लिए टिप्स बताओ तुषार, टिप्स फ्रॉम योर साइड। आई विल सजेस्ट यू गिव Sir, 10 tips, 10 tips बताओ। sir, first tip, जो very most important, if you really decide for to join an aviation industry and you are not getting a proper approach to join an aviation industry, no matter what department you join as a cabin crew or you join as a ground staff, तो अगर आपको सही अप्रोच नहीं मिल रही है तो यहाँ वहाँ जाने से अच्छा है कि they should contact you, they should join whatever your training is, they should join you, आपका क्रैश कोर्स करे। फिर सबसे पहली इंपॉर्टेंट टिप तो ये है, क्योंकि जो अप्रोच और जो आप सिखा रहे हो, जो चीजें, जो इंटरव्यू प्रिपरेशन जो जिसको बोलते हैं प्रॉपर, जैसे कि IAS वगैरह के लिए जो होते हैं, तो मैंने आपको वही बोला था कि अगर अभी मेरे को ये कॉन्फिडेंस है कि मैं IAS का भी इंटरव्यू निकाल सकता हूँ। हाँ यार, वो ये चीज है, ये जो टिप है, ये सबसे पहले यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा है कि आप ज्वाइन कर लो। टाइम मत काटो, अरे टाइम मत काटो। पता लगा कि 3 महीने और काट दिए, फिर 2 महीने और काट दिए। अरे भाई पहले कर लेते, पहले सेलेक्ट होते तो 6 महीने में तुम यार क्या बोलते हैं यार 1,20,000 रुपए कमा चुके होते हो कहीं ना कहीं 20,000 की तनख्वाह के हिसाब से। सो डोंट वेस्ट योर टाइम गाइस, लिटरली डोंट वेस्ट योर टाइम। और एक चीज ऐसी है सर कि अगर मैं अभी कर रहा हूँ और मेरा फ्रेंड 2 महीने बाद कर रहा है तो मैं तो सिलेक्शन मेरा हो जाएगा, उसका वो तो मेरे साथ ही बैठता है ना, खाता पीता मेरे साथ ही, उसका नहीं होगा। तो ये कॉम्पिटिटर्स अपने हाथों से मत बढ़ाओ, क्योंकि पहले अगर ज्वाइन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ऐसे प्रायोरिटी मिलेगा आपको, ऐसा है ज्वाइनिंग के टाइम पे भी। तो यार देखो, तुम हमेशा सीनियर रहोगे, एक जो सीनियर रहोगे, ठीक है, जैसे तुषार ने ज्वाइन किया, बाद में किसी और ने ज्वाइन किया, तुषार का प्रमोशन पहले होगा, ये सीनियर है, राइट। तो ये सब चीजें आगे आपको पता समझ में आएगी, मैं किसी को बताता नहीं होगा। तुषार प्रमोशन पहले होगा, जिसने पहले ज्वाइन किया उसको पहले प्रमोशन मिलेगा। तेरा 1.8 ईयर पहले खत्म होगा, तू पहले सीनियर एक्सी बनेगा, बाकी को बाद में खत्म होगा, बाद में बनेंगे। AM बनेगा तो तू ही बनेगा, एयर APM बनेगा तू बनेगा पहले, क्योंकि तू पहले आया, जो बाद में आया वो बाद में। चीजें सिंपल है। ओके तुषार, दिस वाज द फर्स्ट टिप। सेकंड टिप व्हिच यू वांट टू गिव। सर सेकंड टिप ये है कि जैसे भी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है जो भी एयरलाइन में घुसने के लिए, तो वो बी क्लियर विथ ऑल योर डॉक्यूमेंटेशंस। क्योंकि कैसा होता है कि आप क्रैश कोर्स कर लेते हो और सिलेक्ट भी हो जाते हो, फिर बाद में डॉक्यूमेंटेशन में फंस जाते हो। तो वो चीज ना हो, इसलिए आप पहले ही आपके मतलब आप तो बताते ही हो, जब भी लाइव आते हो सब डाउट्स क्लियर करते हो, तो आप वहां पे पूछ सकते हो कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रिक्वायर्ड है होता है। तो बी क्लियर विथ ऑल योर डॉक्यूमेंटेशन बिफोर यू ज्वाइन एन एयरलाइंस, नॉट एन क्रैश कोर्स। ओके, क्रैश कोर्स में तो पता चल ही जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगता है। ये सेकंड टिप होगा सर। दूसरा टिप ये है कि जब से आपका क्रैश, तीसरा ये टिप ये है कि जब से आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा तो आपका माइंडसेट ऐसे क्रिएट करो कि आप यू लुक योरसेल्फ एज अ ऑफिसर, ठीक है। और कहीं ना कहीं जैसे जैसे क्रैश कोर्स करोगे आप, तो वैसे वैसे आपका माइंडसेट वैसा हो जाएगा कि यू विल लुक एज अ, मतलब प्रोफेशनलिज्म जो रहता है वो अपने आप प्रोफेशनलिज्म अंदर आ जाता है कि यार ये बोलेगा तो ऐसा करना है, इस क्वेश्चन का से डॉज मारना है, इसको से चकमा दूंगा मैं, ये मजेदार चीज है। तो ये प्रोफेशनलिज्म जो एक चीज होती है कि वो आप में क्रिएट करने का ट्राई करो। और ट्राई करो प्रायर 1 मंथ ज्वाइन करने के लिए। फोर्थ टिप विल भी ये होगा कि क्रैश कोर्स ज्वाइन करने से पहले प्रायर 1 मंथ ज्वाइन करो। क्योंकि क्या होता है कि आप कैसे होता है कि आप अगर कल वैकेंसी आ रहा है, अगर आज ज्वाइन कर रहे हो तो इट्स इम्पॉसिबल, किसी के भी लिए भी इम्पॉसिबल होता है। एक दिन में प्रिपरेशन तो नहीं होती सर। मैंने एटलीस्ट मैंने खुद ने 1 महीना की होगी शायद मैंने। हाँ, एक कोर्स और उसके बाद 1 महीना का, हाँ, तो ऑलमोस्ट मैंने प्रिपरेशन, हाँ, तो वैसा हो गया था। मैंने फिर वो टाइम पे मैं प्रिपरेशन कर ही रहा था कि जो आपने क्रैश कोर्स के टाइम पे बताया था कि हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन, जो टिप्स दी थी, तो वही मैं फॉलो कर रहा था और आई वाज प्रैक्टिसिंग फॉर दैट ओनली। सो बिकॉज ऑफ दैट आई आल्सो इम्प्रूव माय कम्युनिकेशन स्किल्स एंड बिफोर दैट इट वाज नॉट अप टू द मार्क। तो वही होगी क्योंकि दैट इज वन ऑफ द पैरामीटर ना, क्योंकि पैरामीटर तो देखते हैं ना।
एक एक पैरामेड एक एक्सटेंट तक एक एक्सटेंट तो आनी चाहिए ना सर, थोड़ी बहुत तो आनी हाँ चाहिए। है ना, हाँ पूरा तो पूरा कितने रिलाई हो गए दूसरों के ऊपर यार, है ना। तो कहीं ना कहीं हाँ। थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए यार, है ना। कब तक जो है थोड़ा मतलब बच बच के चलोगे यार। सो व्हाट आई सजेस्ट कि बेटर इंप्रूव इट, बेटर इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। किसी दिन मेरे टाइप का आदमी फंस गया तो एक गलती से इंटरव्यू में तो अटका देगा वहीं पे, नहीं लेगा वो। हम्म। ये चीजें हैं तो, ये चीजें ओके। तो यार नेक्स्ट नेक्स्ट टिप। और before joining an airlines, I would suggest in crash course, while you are doing a crash course, be clear with which department you would like to join. तो कुछ वो माइंडसेट्स के हिसाब से आप स्टडी करो, क्योंकि इंटरव्यू प्रिपरेशन भी एक ऐसी चीज होती है कि जिसको स्टडी किया जाता है, ना कि मतलब वो एक एग्जाम की तरह ही होती है। जैसे आईएएस के लिए आप लोग यूपीएससी के लिए पहले रिटर्न क्लियर करते हैं, फिर इंटरव्यू क्लियर जाते हैं, क्योंकि वो पैरामीटर ही क्लियर करने के लिए रहता है। तो आप जब क्रैश कोर्स कर रहे हो, क्रैश कोर्स के टाइम पे जो आपको डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है, तो उस हिसाब से ही आप स्टडी करो, उस हिसाब से ही आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो। और फिफ्थ टिप ये दूंगा सर कि जो ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, विच एयरलाइन इज लुकिंग फॉर, बी अवेयर व्हाट आर द ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स। और ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स को प्रैक्टिस करो। जैसे कुछ कुछ लोग क्लीन शेव नहीं करते हैं, तो बिफोर ज्वाइन, क्योंकि आप कंफर्टेबल नहीं होते अगर अचानक से आप करते हो क्लीन शेव वगैरह, तो कुछ लोग मूछ वगैरह नहीं उड़ाते, तो आप कंफर्टेबल नहीं होते हो फेस के साथ। तो आप पहले ही इंटरव्यू के जाने से पहले ही आप थोड़ा सा कंफर्टेबल होने के लिए आप एक बार कर दो। एक बार आप कंफर्टेबल हो गए हो फेस के साथ, तो आप कॉन्फिडेंट ऑटोमेटिक अपने आप में आ जाएगा। तो ये एक टिप दे पाऊँ जो मैंने खुद नहीं किया है, क्योंकि मैं इसके पहले कभी मूछ नहीं उड़ाता था सर। और और मैंने वही किया, थोड़ा कंफर्टेबल फील करने के लिए मैंने स्टार्टिंग में उड़ा दिया। और ठीक है, स्टार्टिंग में कुछ लोग आपको अरे वो थोड़ी अलग एक दिन तरीके से अजीब लगता देखते है हैं। भाई, लिटरली बता रहा हूँ, एक दिन अजीब लगता है, देन इट्स वेरी क्लियर। हाँ एट लोगों को हाँ फॉर्मल पहनने की आदत नहीं होती है, ठीक है। तो भाई हाँ मेरे टाइप का अगर आदमी हो तो फॉर्मल पहन को इंटरव्यू की प्रैक्टिस करे, राइट। तो हाँ ये सब चीजें मुझे लगता है करनी हाँ। चाहिए यार। और जहाँ ओके पे तो और जो बोलो सिटिंग बोलो। पोस्चर वगैरह जो होता है, जो सिटिंग पोस्चर जो वगैरह होता है, तो वो भी आप देख सकते हो कि कैसे बैठना है, कैसे मतलब है। आप बताते हो क्रैश कोर्स में ये सारी चीजें, एक्चुअली मुझे ये नहीं भूलनी चाहिए, पर जो भी सिटिंग पोस्चर्स वगैरह जो होते हैं वो आप देख लो, एक बारी में सीख लो कि आप जो बताओगे उसको फॉलो करो प्रॉपर वे में। और और लास्ट टिप ये बताऊंगा सर कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हो उसका फोटो कॉपी लेके जाओ। और रिज्यूमे के 2-3 कॉपीज लेके जाओ, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट राउंड हुआ था कि मैंने फर्स्ट रिज्यूमे दे दिया था, और सेकेंड राउंड में मुझे फिर से रिज्यूमे के लिए पूछा गया था, तो मेरे पास अच्छा हुआ एक एक्स्ट्रा कॉपी था रिज्यूमे का, तो वो मैंने फटाफट से निकल के दे दिया। तो कभी भी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो रिज्यूमे के 2 से 3 कॉपी लेके जाओ। फिर से फिर यही टिप्स जो है, दो इम्पोर्टेंट टिप्स है जो मैं बताना चाहूंगा सर। ओके। और बाकी गाइस, इफ यू वांट टू क्लियर द इंटरव्यू इन वन सिंगल अटेम्प्ट, डू जॉइन द क्रैश कोर्स। और दैट्स इट यार। और यू कैन, क्रैश कोर्स आर फ्री अवेलेबल, है ना। फ्री 50% ऑफ द क्रैश कोर्स अवेलेबल इन फ्री। इन प्लेलिस्ट है, 2 प्लेलिस्ट बनी हुई ऊपर, इंटरव्यू कंटेंट करके और सिलेक्टेड सब्सक्राइबर करके। सो तुषार इज नाउ अ सिलेक्टेड सब्सक्राइबर, राइट। इज अ सिलेक्टेड सब्सक्राइबर, इज अ क्रैश कोर्स अर्लियर स्टूडेंट, नाउ इज अ सिलेक्टेड सब्सक्राइबर। तो एक चीज और, लोग भले इंटरव्यू दे, क्रैक करे, आई डोंट केयर, वीडियो अपलोड नहीं होगी। वीडियो अपलोड तब होगी जब ही विल बी स्टार्टेड एज वर्किंग, विल बी वर्किंग, राइट। नहीं तो फिर लोग तो देते रहते हैं इंटरव्यू यार, नॉर्मल है चीजें, राइट। तो चीजें अपलोड तभी होगी जब 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 इसके लोगों के हाथ में असाइनमेंट, क्या बोलते हैं, कौन सा रहता है ना, लेटर मिलता है ना, क्या अपॉइंटमेंट ऑफर लेटर, लेटर। ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है, एंड दे यूज्ड टू स्टार्ट द ट्रेनिंग। उस सिनेरियो में वीडियो बनवाता हूँ मैं, उस समय में वीडियो लोगों को बोलता हूँ कि अब बनाते हैं वीडियो करके, ताकि चीजें क्लियर हो जाए। एंड लिटरली गाइस, दोस पीपल हु जिसके सिलेक्टेड सब्सक्राइबर आप देखते हो वीडियो, दे ऑल आर वर्किंग, ठीक है। एंड स्टिल टिल नाउ वी हैव 45 सिलेक्शन, 43 था, 42 45 अभी 2 हुआ है, ठीक है। 43 44 45 अभी हुआ है 45। तो ये चीजें हैं। एंड आई गेस इन फ्यूचर मेनी मोर पीपल फ्रॉम द क्रैश कोर्स विल क्लियर द इंटरव्यू। इतना तो मुझे पूरा भरोसा है। अभिजीत का हो गया, तेरा हो गया, आफ्टर फ्यू डेज किसी और का होगा, किसी और का होगा। तो ये चीजें हैं तुषार, एंड इट्स अमेजिंग मीटिंग यू, एंड थैंक आई यू। विल डेफिनेटली कम एंड मीट बडी, है ना। एंड आई गेस अब तो मुझे नहीं यस मिलना सर, चाहिए, तो तुझे मिलना चाहिए भाई, बिकॉज यू आर हैविंग अ मैं ही स्टाफ ट्रैवल, आऊंगा। है ना, स्टाफ ट्रैवल। मैं ही एंड आऊंगा। आई ऑल्सो बाय अ बुलेट, है ना। मैं सर कावासाकी लेने के मूड में था भाई, लिटरली बता रहा, मैंने बुलेट हाँ इसीलिए लिया क्योंकि भाई तुम सब लोगों ने बोला कि बुलेट 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 करके,
एक ने भी Yes. कावासाकी निंजा नहीं बोला उसमें। ये नहीं नहीं, मैं जब क्रैश कोर्स में था ना सर, तभी आप गए थे फर्स्ट टाइम देखने के लिए बुलेट। हाँ, उसी समय गए थे अपन, बुक करने गए थे, तो बुक तो हमने इलेक्ट्रा की थी, फिर देखा कि यार फील नहीं आ रहा है, क्लासिक वाली क्लासिक में ही बात रहती है यार, तो फिर मैंने बोला एक काम करते हैं, क्लासिक ही लेते हैं यार, है ना। तो उतने मेरे पास उतने पैसे वैसे नहीं थे, मैं सोचा कि यार इलेक्ट्रा लेते हैं, यार कितने में ठीक है हो जाएगा, मैंने कहा नहीं यार लेंगे तो फिर क्लासिक ही लेंगे, मैंने कहा थोड़ा और वेट कर लेते हैं, एक्सटेंडेड डे एक महीना और मैंने एक्सटेंड किया, तो मैंने कहा क्लासिक मूव ऑन मारते हैं ना, क्लासिक भी बाइट क्लासिक। सो है ना तुषार, Yes, sir. डू कम टू रायपुर एंड विल रोम हियर एंड देयर, है ना। Definitely, बता के आना भाई, definitely. और एक हफ्ते पहले बता के आना, प्लानिंग, ताकि मैं चीजें Yes, सेट कर सकूं, है ना, ये चीज yes, sir, yes. है ना। सो तुषार, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, डू ग्रो हाई Thank एंड you, sir. डू अचीव हाई गोल्स इन लाइफ। एंड एक चीज और मैंने जो हमेशा लोगों को बताई है कि आगे बढ़ते रहना है भाई, है ना, आगे की चीजें बड़ी क्लियर Yes, sir. रखनी है, जैसे तुमने बताया क्लास 2 मेडिकल है, तो उसके आगे बढ़ो भाई, है ना, उसके आगे बढ़ो, वो चीजें हैं, और यहीं पे कहीं ना कहीं करियर में आगे ग्रो करो यार, सिंपल है चीजें, ठीक है। Yes, सो sir, अगेन yes. तुषार, एविएशन लाइफ कांग्रेचुलेट्स यू एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस, Thank you, एंड अमेजिंग ना, अमेजिंग, मजा आ गया ना भाई। लोग सेलेक्ट होते तो ऐसा लगता है कि मैंने इंटरव्यू निकाल दिया है, सर बता रहा हूँ भाई, sir. जब Yes, लोग sir, सेलेक्ट yes, होते sir, हैं ना, yes. जब कोई क्रैश कोर्स का स्टूडेंट सेलेक्ट होता है, तो इट्स लुक लाइक कि यार मैंने फिर से इंटरव्यू निकाल दिया, मैंने निकाल दिया, तो ये चीजें। तो एक चीज और गाइस, आप लोग बोलते हो कि बाकियों की वीडियो अपलोडेड क्यों नहीं है, अरे भाई बाकियों की वीडियो इसलिए बिकॉज मेनी पीपल दे डोंट मेक वीडियोस, ठीक है। मैनी पीपल जो है इंटरव्यू तो निकालते हैं लेकिन ज्वाइन नहीं करते, ये भी चीजें हैं, ज्वाइन नहीं कर पाते कुछ कहीं अटक जाते हैं, जैसे कि इसने बोला डॉक्यूमेंटेशन रेडी रखो, है ना। फिर कुछ लड़कियां रहती हैं जिनका प्राइवेसी इशू आ जाता है, तो उनको तो मैंने गिनना ही छोड़ दिया है ना, तो वो सब चीजें हैं। सो मैं लड़की लड़का दोनों को पढ़ाता हूँ ना, लड़की लड़का दोनों को पढ़ाता हूँ, है ना, ये चीजें हैं। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द थिंग, डू जॉइन द क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 15th of August. Things will be displayed in the video, I mean in the video, and do send a WhatsApp message, my number 7999508444, do send a WhatsApp message. And guys, this was all about today's video, and Aviation Life again congratulates Tushar for clearing the interview, and at 9 he will be joining Abhijit, Nadeem and Tushar, all the three people from the same interview coaching and the same person who made the CV. So again guys, have a very good day, and Tushar, have a very good day, do enjoy your day and do enjoy the life and do enjoy the aviation life. Okay guys, है ना, bye bye Tushar, have a very good day. एक चीज सर कॉपी करना चाहता हूँ सर आपकी। हाँ हाँ हाँ, So bye बोलो bye बोलो। guys, bye bye, जय हिंद all. Okay guys, bye bye, take care, नमस्कार and जय हिंद to all, bye bye everyone। चल तुषार बंद कर देना।